The journey of thousand algorithms begins with a single hello world. Good afternoon, assalamu alaikum everyone. Thank you for joining us today for this exciting workshop. As we all know that today is the second day of this workshop and the topic for today's first session is Introduction to Programming Languages and Essential Skills. My name is Aman Tariq and I will be your host for today. So today we will explore the fascinating world of programming languages and delve into the essential skills required for success in the field of programming. Today we are embarking on a journey into the heart of digital world where lines of code give life to our favorite apps, websites and chatbots and technologies. It's a world where creativity meets logic and problem solving takes center stage. Whether you aspire to become a software developer, data scientist, or even if you are just curious about how the digital beyond operates, this workshop will empower you with knowledge that can open doors to countless opportunities. In this session, we will be having a detailed knowledge of programming languages, types of programming languages, how these programming languages differ from each other, and many concepts related to programming languages such as arrays, loops, and overview of object-oriented programming. So by the end of this workshop, you will have a much understanding of programming languages and the skills needed to navigate it. Now, without any further delay, I would like to call one of our colleague Laiba Javed on the stage to continue this workshop. Good afternoon, everyone. Thank you, Mantari, for the introduction. And let's begin. So, yesterday, Shibli Bhai told you a lot about binary digits, how a computer programs and how it works behind the scenes. Now, we are going to talk about how a human can make a program and have a conversation with a computer in order to program anything that they want to. So, are you all ready? Let's begin. Why do you think programming languages are important? Anyone from the audience? Okay. Programming languages क्यों हम यूज कर रहे हैं? कोई चीज होगी, कोई वजह होगी, क्योंकि बाइनरी डिजिट्स ऐसा तो नहीं है कि इंसान समझ सकता है बाइनरी डिजिट्स को. Why do you think programming languages are important? Exactly, yes. Because humans cannot understand zeros and ones. एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है, बहुत ही अच्छा इंसान हो जो बाइनरी सीख के आ जाए, बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हर इंसान को बाइनरी आती होगी. दैट्स व्हाई वी हैव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इट्स जस्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ ह्यूमन प्रोवाइड्स टू परफॉर्म टास्क्स ऑन कंप्यूटर. बट यहाँ पर हमारे पास एक केस ये आता है, जिस लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड. And computer cannot understand that source code because a computer can only understand binary as shown on the screen. Therefore, in order to convert that source code into binary, we have, okay, one second. So it follows the same paradigm as mentioned yesterday by Shibli Bhai, the input, process and output. The input is first processed and then the output is given. Next, if we talk about how the source code is being converted into the machine code, the binary one, we use a compiler. The compiler actually compiles all that source code and turns it into machine code which a computer can easily understand and can operate all the functions accordingly. Now let's talk about high-level languages. So as you can see in the image, the source code, print hello world. And then there's a compiler and then you can see the machine language. Basically, high-level languages are those languages which are easily understood by a human. No one can understand the machine language. Therefore, we need high-level languages which are easily communicable, are readable and understandable by a human. That's why we have source code in high-level language, and that source code later gets compiled and translated into machine-level language. Low-level languages. So these are those languages which are closer to machine code.
Okay, and human cannot understand. Like if you can see in the image, Joey is saying something and you cannot understand. So that's the same case. If we come across a low level language, only someone who is well versed in it will be able to operate with those languages. But that is not the case for someone who just come across this language out of the blue. तो इसलिए वी यूजुअली अवॉइड दोज लो लेवल लैंग्वेजेस आजकल इतने उसमें नहीं है यूज में जितनी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं सच एज पाइथन एंड जावा सी प्लस प्लस next we have procedural versus declarative languages. These are also two different types of languages and the difference you can see here on the screen. Procedural languages basically tell you how to follow a procedure, a stepwise approach. Like yesterday, Shadhi told you about algorithms, how you get a book from a library. If you can remember, you go to the library and then you ask for the book, then you search for it, and then it's they give a librarian, they give you a library card, and after that, so that's an algorithm. And for that, in order to understand that and also explain it to a computer, we use those procedural languages. जो उसमें आपको एक स्टेप वाइज अप्रोच बताते हैं कि आप एक एक स्टेप फॉलो करके कैसे अपना रिक्वायर्ड आउटपुट ला सकते हो एंड एग्जांपल्स आर सी फॉर्ट्रान एंड जावा ऑब्वियसली दीज आर प्रोसीजरल लैंग्वेजेस नाउ वी टॉक अबाउट डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस ये सिर्फ ये बताती है कि हमारा आउटपुट कैसे डिस्प्ले होना चाहिए हमने डिक्लेयर कर दिया एंड हाउ इट इज बीइंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन दैट्स ऑल देयर इज नो सच थिंग एज प्रोसीजर और स्टेप्स कि आपको एक सर्टेन सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो करके अपना एक आउटपुट लाना है नो इट्स जस्ट those variables are declared everything and it is being displayed. I'm sure आप लोगों ने HTML में करा होगा अगर आप स्कूल में थे and you had computer science as a subject तो उसमें आपको HTML सिखाते थे and उसमें tables हैं background images colors कैसे ऐड किया जाए so it was all about that. That's what declarative languages are. Moving on, object oriented languages. So these were all the languages that we use to tell a computer what to do and how to operate, how to give an output. Now let's talk about object-oriented languages. Anyone who has any understanding about these? Anyone from the audience? Object-oriented से क्या understanding है? Yes. Yes, exactly. So it's easier to understand basically. यहाँ पे हम classes and objects create कर देते हैं. Classes एक तरीके से हमारा blueprint है, framework है, जिसमें we can create objects. And for that we use these object-oriented languages which help us to make those objects using classes. And the examples are Java, C++. I'm sure कुछ लोग करते होंगे program Java में, so they know this already. Okay. Categorizing languages is very important because there's multiple languages available and how to differentiate between each type of language and what language is used for, it's very important. For now we're just going to discuss three languages all in our workshop. There's web development languages, there's AI, ML languages that we use to create machine learning codes and mobile apps if you talk about it. This is just a brief description of what the following workshops the sessions of this workshop will cover. The different languages. For web development we have HTML, CSS. These are the front end and there are also back end languages which work. If we talk about Python, not only is it in web development, it's also a part of AI for data visualization. So this is a very dynamic language which we can use for multiple domains. तो ऐसे भी बहुत हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं जिससे हम अलग अलग डोमेन्स में काम कर सकते हैं. Python is one such language. Similarly, there are languages C. This is written Python is also in data science and analysis languages. As I mentioned earlier, if you want data visualization, we can use Python for it. And also in web development, the Django framework it helps us to use Python to make web apps. And there's mobile app development, and these are some few languages that are used in mobile app development, and we'll be just diving deeper into these languages day-wise in the following sessions, so don't worry about it. Now, let's talk about printing your first program. How will you print your first program, and what will it be?
the typical hello world. Okay, I'm going to switch. Okay, if some of you want to use your laptop, if you have already installed all those compilers that we had asked you to install yesterday, you can program along with us, but you can just keep on watching if you don't have your laptop right now. One second. Okay, is the screen visible in the back? Everyone? Can you see the program? Is it visible now? So this is a very basic program in C language, which we are going to use throughout this session for the basic structures and for the data structure that will be followed in today's session by our staff. So now let's print our first program of Hello World. So let's don't focus on the syntax right now. Just see here we have this function which is going to print our Hello World. Hello World. Here we have it. Can you see the output on the screen? The Hello World. It's printed right over here, if you can see it. So how it got printed? Now let's talk about the syntax a little bit. Okay, so the first thing that you saw on the screen was include stdio.h. Right. This is the include stdio.h. This is basically a library which gives us the input and output, the standard input and output library, and .h is the header file. Why do we need to use these libraries? It's because how will you tell the computer what to perform? So that's why we need to import these libraries, and therefore we are also using this #include, which we are going to use in order to import all these libraries, which will help us print our required output. That is the hello world. And if you talk about printf, it's one of those functions which is present in the stdio.h library, which helps us print hello world. Talking more about this, if you can see this printf, we also call them as keywords. These are known as keywords. Why? Because these are predefined. Okay, so if we use, I'll explain it further, more clearly later in the session. But for now, let's understand the concept of keyword. These are predefined variables which you use in order to invoke any command on C or any other programming language. There's printf, and if you're aware, there's if, else, keywords, true, false. So these are already predefined and you cannot use them to assign any value to the variables, as variables to assign any values, right? These are already there, existing in the library. So I've already discussed libraries. It's just a definition. It's a collection of pre-written code to perform common tasks. Reusability saves development time. As I mentioned, as I showed you in the code, it's important for us to import these libraries in order to print that, our output. And we have other multiple libraries such as string.h is there, maths.h is there. So we can use these libraries to perform various such functions. And frameworks are, these are pre-built architecture for developing applications. This will be discussed further in the workshop in the following session, so don't worry about it. Next we have key programming concepts. Variables and data types. Anyone who would want to volunteer to define a variable? What a variable is? Yes. Yes. Okay. Anyone else? Okay, well you can see the definition on the screen. A storage location to hold data that can be modified during program execution. Let's switch over 1 second.
So in this program, you can see it's print hello world already. There's no variable right now. But let's introduce a variable. For example, let's say a variable is a that holds the value 9. So you and I, we both know this is an integer 9, and the variable a holds the value of 9. So that's just it for now. But let's talk about data types. You and I know, we know it's a 9 and it's an integer, but how does the computer know it's an integer? Therefore, we need data types. If you can see here, there's a red line coming under A. It's an error because the computer doesn't know what the A is. Even though it's holding a value, it shows a data, the computer doesn't know what that data is and how it should be, how different operations should be done on that variable. That's why we need data types for that. So for the data type for an integer, we have to use int. So right now, if we so this is it for now. There's various other data types we have. See, this integer that I showed you on screen, int a equals to 9. That's integer data type. Apart from it, we also have string data type because we also need text inputs or outputs. For that, we use string, and all languages have different syntax for taking a string or outputting it. And as you can see, Python just simply assigns the value to the variable. It doesn't need any initialization for the data type. Otherwise, if you see in other languages such as JavaScript, and as I showed you in C, we need to put the type of data type in front of the variable. Similarly, this float in double decimals cannot be given in integer, and an integer can be given in float. We'll dive deeper into it later. Boolean, this is another data type, true or false. It just takes two values, true and false. There's no other value that it can take. Static languages. So इसमें क्या होता है कि हमारा variable, if we have introduced it once, उसमें उसकी value is fixed during the whole programming execution. वो हम change नहीं कर सकते हैं, it remains static. And for that हमें बहुत ज़्यादा line of code लिखना पड़ेगा, एक दो line का, ज़्यादा नहीं, but yes, we need to use other lines in order to change the variable. However, that is not the case in dynamic languages. They can keep on changing the value of the variable anytime throughout the program execution. And we have Python, JavaScript for that. Let's talk about operators. Operators basically are symbols that are used to perform operations on any variable and the values that are in the variable so that we can get any output. Let's switch once again to understand what an operator is. As you can see, int a equals to 9, right? So we are assigning a value to a variable 9. And how are we assigning it? We're using an assignment operator of equals. So this is an example of an operator. Okay, this is an assignment operator. See, assignment operator. There's various other assignment operators, plus, equals, minus, equals. Basically, इसमें ये होगा कि equals will assign it, and if you use plus equals, it will add a value into it. And similarly for the minus equals, it will subtract a value from the variable. So, we also have other operators, arithmetic operators. If we want to perform addition, subtraction, multiplication or division, we can use these operators. Next we have relation operators. I have a program for it. Okay, so for relational operators, let's switch to this program of leap year. Can anyone tell me what a leap year is? So this is a very easy question. Leap year. Yes, see, very good. Okay, so leap year में basically 29 February तक होता है, 366 days होते हैं. So how do we know if a year is a leap year? Here we have used these operators. As you can see, this AND operator. Okay, ये वाला नहीं होता है.
तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है एंड नेक्स्ट वी हैव दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर. ठीक है. इधर we have this is the logical operator as you can see and this is another logical operator or operator and these two equal signs, these are the relational operators. We are comparing a relation between two conditions. So okay, here one more thing, this is a format specifier. अगर आप integer define करते हो, here we have already introduced a variable of integer here and if you already define actually define one second. ओके. तो हम यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं यूजर से एंड फॉर दैट सो यहाँ पर हम ले रहे हैं इनपुट यूजर से. फॉर दैट एज आई मेंशन लाइब्रेरी में वी हैव printf and scanf ऑप्शन. printf इज फॉर आउटपुट एंड scanf इज फॉर इनपुट. और ये जो हमारा %d है दिस इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर. ओके. इसमें हर डेटा टाइप का अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है एंड %d इज फॉर इंटीजर टाइप. ठीक है. ये हमने एक वेरिएबल ऑलरेडी ले लिया int here which is going to take value as an integer. So next ये हमारा जो है ये एक कंडीशन हमने दे रखी है. We will be discussing further about if and else. बट अभी अगर हम देखें फॉर ऑपरेटर्स, अगर हमारा इज डिविजिबल बाय 4 एंड उसका जो रिमाइंडर है 0 आता है एंड इफ इट ऑल्सो डिविजिबल बाय 100 अब इस केस में हमारा 0 नहीं आता है रिमाइंडर एंड और जो हमारी थर्ड कंडीशन है दैट इज जब 400 से डिविजिबल है वो ईयर देन दैट ईयर इज अ लीप ईयर. तो वो तीनों कंडीशंस को देखेगा एंड ऑपरेटर में ये होता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तब वो आपका आउटपुट प्रिंट करेगा. और ऑपरेटर जो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं अगर इन दोनों में से हमारी कोई एक कंडीशन ट्रू है तो हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाएगा. तो या तो ईयर गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 0 इज डिवाइडेड बाय 400 या फिर ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. ओके. सो नाउ गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एनीवन. कोई ईयर बताइए. 2014. ओके. ये आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ है. व्हाई डू यू थिंक आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ? अच्छा हाँ इधर नहीं आ रहा. So we use this condition to compile our program. Okay. प्रोग्राम लिखा हुआ है सोर्स कोड में उसको कंपाइल करना जरूरी है ताकि वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में बन जाए. तो यहाँ पर हम gcc यूज दिस कमांड टू कंपाइल आवर सोर्स कोड इनटू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड वी आर गोइंग टू नेम इट एज leapyear.exe. ओके. क्या है? नो सच फाइल डायरेक्टरी. हाँ यार एक्सटेंशंस का बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़. तो ऑलवेज रिमेंबर एक्सटेंशंस. .c का हमारा प्रोग्राम है तो उसको हम कंपाइल कर रहे हैं टू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल. तो नाउ इट्स कंपाइल्ड. अब हम उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को प्रिंट कराएंगे.
Okay, so 2014. See, it's not a leap year. So that's how we use operators for various conditions. In case of conditions, we use variables when we need to compare things. Moving on. Okay, increment and decrement operators. I'll show you the use in further examples. But इसमें हमें अगर एक increment कराना होता है, then we use plus plus, and decrement कम कराना होता है, then we use minus minus. ज़्यादातर ये loops में हम use करते हैं. Bitwise operators. Okay, perform operations on individual bits of binary numbers. तो इसमें भी इतना नहीं राइट कर सकते अभी. Next we have control flow. Conditionals. Control flow, anyone from the audience फिर बताना चाहेंगे control flow से क्या समझते हैं? हाँ, if else. तो ये एक कंट्रोल करना है हमें कि जो हमारा प्रोग्राम है वो एक फ्लो में चले, मतलब हर चीज़ एग्जीक्यूट ना हो, सिर्फ सर्टेन एक ही आउटपुट प्रिंट हो जो हम चाहते हैं. जैसे कल हमें शिवी भाई ने दिखाया था एक बुक का लाइब्रेरी से लाने का, उसमें था इफ एल्स उन्होंने यूज़ करा था कि इफ बुक अवेलेबल तो वो बुक बोरो हो जाएगी, नहीं अवेलेबल है तो आप लाइब्रेरी छोड़ के चले जाओगे. तो दैट्स व्हाट द कंडीशनल्स आर. सी डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे आप डिसीजन ले रहे हो कि अगर बुक है तो बुक ले ली, बुक नहीं है तो आप चले आए. सो वी यूज इफ एल्स स्टेटमेंट स्विच केसेस, ये हमारे उसमें आते कंडीशन है. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट. हम एक इफ कीवर्ड यूज करते हैं एंड विद दैट वी प्रोवाइड द कंडीशन. उसके अंदर ही कि हमें कंडीशन क्या चाहिए, वो ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स होनी चाहिए. एंड फिर ये जो है कंडीशन दैट इज टू बी द कोड दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू. So as you can see the program on screen, let's try to execute it. Okay, so this is the same program. यहाँ पर we have the variable of age 20. अब हमने कंडीशन लगाई है कि अगर एज हमारी greater than equal to 18 है, so it will print you are an adult. Okay, let's try to print this program now. First we compile this program. Okay, so it's compiled, that means there is no error in our program. Next we are going to print. Let's execute this. You are an adult. Because 20 is an age which is greater than 18. Therefore, it prints the statement you are an adult. Similarly, ये तो था हमारा एक केस कि जहाँ पर हमारी एज 20 है. फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है विच इज लेस देन 18, एज 16 है, उसके लिए हम कौन से कंडीशन यूज करेंगे? फॉर दैट वी हैव द इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ यू आर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 यू आर एन एडल्ट, अदरवाइज एल्स. फॉर दैट वी यूज एल्स एंड उसमें हम अपना कोड एग्जीक्यूट कराते हैं दैट यू आर नॉट एन एडल्ट. ओके, सो इसमें दूसरे एग्जाम्पल भी अच्छे यूज है. So we have this number 6. Even or odd की condition we are putting here. अगर हमारा number after getting divided by 2 gives an output of 0, this remainder of 0, then the number is an even. Otherwise it is odd. So let's run this program and see if it is even or odd. As you can see on the screen, the number is even because it's 6, and 6 after getting divided by 2 will give us a 0.
So this is where we're using. In case we put a number, let's say 7. You and I, we both know it's not an even number. But if we execute this now, so the number is odd. 7 number is odd. This is the else condition. अब ऐसे अगर हमारे पास बहुत सारे कंडीशन हों, एक ट्रू होना चाहिए, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स, तो उस केस में हम यूज एल्स इफ लैडर. तो इसमें हम बहुत सारी कंडीशन यूज कर सकते हैं, इफ, एल्स इफ, एल्स. एंड इसके लिए वी हैव अ कोड ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड. एज यू कैन सी, अगर मार्क्स आपके 90 से अबव हैं एंड इट्स ग्रेड ए. If it's else if it's greater than equal to 80, then it's a grade B. और end में we are using an else keyword to print that grade D. उससे कम में नहीं है कोई grade. So it's just grade D and you have failed the exam. So this is an else if ladder example. Next, now let's talk about loops. What are loops? कोई चीज़ अगर आप कोई म्यूजिक अगर आप सुनते हो बार बार लगातार, that's then you say that you are playing a song on loop. बार बार चला रहे हो. So similarly, we have the concept that if you want to execute a certain code, a program repeatedly, we use loops. इसमें we have for loops, while loops, and do while loops. Let's talk about for loops. It repeats a block of code a specified number of times. आप उसमें अपनी condition दे देते हो. Let's see here. Syntax, if you can see on the screen. एक आपको इनिशियलाइजेशन कंडीशन देनी होती है जहाँ से आप शुरू करते हो अपने लूप को. नेक्स्ट होती है कंडीशन कि कहाँ पर क्या कंडीशन है आपकी, कि वो कहाँ तक जाना चाहिए, किस एंड पॉइंट क्या है. लूप वरना इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा, उसको पता नहीं कि एंड कहाँ होना है. फॉर दैट वी यूज द कंडीशन. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितना उसको होना चाहिए, जैसे आई मेंशन अर्लियर कि वो x प्लस प्लस जो था, वी आर गोइंग टू यूज इट हियर. क्योंकि हम या तो एक बार उसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं लूप को, या 2 बार इंक्रीमेंट कर सकते हैं. एंड फॉर दैट वी हैव as you can see the program on screen. This is an example for loop. तो यहाँ पे जो हमारा वो है ऑपरेटर वो i प्लस प्लस, ये हमारा इंक्रीमेंट करेगा इटरेशन को एक एक बार बार. So let's print this program and see. So as you can see एक लूप चला जिसमें हमने ये प्रिंट कराया iteration this is we are getting the output printed for this amount of time. हमारा initialization था 1. यहाँ से हमारा लूप चलना शुरू हुआ. यहाँ पे जब आप देख रहे हैं पहला आउटपुट जो प्रिंट हुआ वो है iteration 1, that is printed 1 time. नेक्स्ट हमारा जो है कंडीशन जो फाइनल जहाँ पर एंड करना है, हमें लूप जहाँ तक चलवाना है, that is less than equal to 5. तो हमारा लूप जो है जब 5 के इक्वल हो जाएगा तो फिर वो रन करना बंद कर देगा. एंड दिस इज द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो हम मेंशन किया था सिंटेक्स में. एक एक बार वो उसमें ऐड करता रहेगा. लाइक एक बार इटरेशन हो गया तो फिर वो उसमें i प्लस 1 करेगा विच इज i इक्वल्स टू 2 नाउ. सेकेंड टाइम जब प्रिंट होगा तो वी विल गेट इटरेशन 2. ऐसे ही वो 5 बार प्रिंट करेगा एंड वी गेट द इटरेशन 5. ऐसे अगर हम इस केस में ये कर दें कि सिर्फ लेस देन 5 कर दिया हमने फॉर एग्जाम्पल. ओके, अब अगर हम रन कराते हैं
ओके, फॉर सम रीजन वैसे ये प्रिंट होना नहीं चाहिए, क्या हो रहा है इसमें आई डोंट नो, बट जब हम ये कंडीशन लगा देते हैं दिस वन, उसमें लूप जो है सिर्फ एक लेस टाइम चलता है। तो लेट्स मूव ऑन नाउ। Initialization condition increment as I discussed earlier. ओके, while loop it जब हमें कंडीशन नहीं पता होती है, अगर हमें नहीं पता होता है कि हमें किस एंड तक कंडीशन को रन कराना है, क्लॉक को एग्जीक्यूट कराना है, then we use while loop in that case. It keeps on repeating until एक specified condition जो है true हो जाती है. So we have the syntax for while loop here, the condition and the code to execute. This is a basic program. One second. So as you can see on the screen here, एक हमने काउंट दे दिया, काउंटर विच हैज इनिशियल वैल्यू 0, और ये हमारा वाइल है। यहाँ कंडीशन है काउंट जब तक हमारा लेस देन 3 है तब तक हमारी ये वाली कंडीशन प्रिंट होती रहेगी। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। कोई बात नहीं, वो नहीं चल रहा है, उसको बाद में देखेंगे, अब टाइम नहीं है उसको इन्वेस्ट करने का। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द डू व्हाइल लूप। As you can see on the screen, it repeats a block of code once, then repeats as long as the specified condition is true. Okay, so इसमें is ensuring a block of code is executed at least once. ठीक है, वो कंडीशन while loop में है कि अगर कंडीशन नहीं मीट करी तो वो नहीं हो पाएगा प्रिंट, बट इन डू while loop की एक बार तो वो एटलीस्ट प्रिंट होगा ही। एंड दिस इज द बेसिक सिंटेक्स। उसमें वो हम पहले बता देते हैं कि वो कोड एग्जीक्यूट होता रहे while the condition is true, and this is the code for it. Let's talk about functions and modularizations. So functions basically ऐसा है कि कई बार आपको सम कराना है किसी चीज़ का, 2 डिजिट्स का बार बार आपको कराना है, तो आप अगर एक कोड लिखोगे कि सम कराओ, स्क्वायर कराओ 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, तो फंक्शंस में ये होता है कि हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं एंड वी पुट द कोड देयर कि अगर सम आए तो 2 वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेटर यूज करके यू ऐड देम बोथ। सिमिलरली स्क्वायर के केस में मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर को 2 बार उसी से। तो फंक्शन में हमने एक बार डिफाइन कर दिया, देन वी कैन यूज दैट फंक्शन टू
get the output again and again in the same program. बहुत बार हम यूज कर सकते हैं. That is the function. इसमें we have the return type, कोई वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए. फंक्शन नेम, फंक्शन का नेम जिससे आप उस फंक्शन को कॉल करोगे. So we use that for that. Parameters is कि उसमें कौन से इनपुट जाएंगे. स्ट्रिंग का जाएगा, इंटीजर जाएगा, फ्लोट जाएगा. तो उसमें पैरामीटर्स आपको पहले से डिफाइन करने होते हैं. फंक्शन की बॉडी सॉरी, तो उसमें जो कोड है जो परफॉर्म होगा, तो कोड दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, तो वो फंक्शन हमने एक बार लिख दिया तो हमें वो कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. वी कैन कॉल इट अगेन एंड अगेन. ओके, सो दिस इज अ फंक्शन टू प्रिंट स्क्वायर. ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है ऑलरेडी this. Here we have this function square, as you can see on the screen, square, and this is the parameter int num. इसमें वो पैरामीटर जो वैल्यू हम देंगे वो इंटीजर वैल्यू लेगा, और जो रिटर्न टाइप है जो रिटर्न करेगा दैट इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर. यहाँ हम अपने मेन उसमें जब हम कराएंगे प्रिंट स्क्वायर ऑफ 5, तो हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे दिया, दिस इज कॉल्ड एन आर्ग्यूमेंट, जो हम वैल्यू उधर डालना चाहते हैं इन द पैरामीटर. तो यहाँ से हमारी जो 5 की वैल्यू है दैट विल गो इनसाइड द फंक्शन इन द पैरामीटर एंड देन इट विल गेट ऑपरेटेड अपॉन. वो स्क्वायर फिर जो है वो प्रिंट कर देगा. ओके, इसमें प्रिंट एफ तो नहीं है बट वी कैन प्रिंट द रिजल्ट हियर. दिस इज कॉल्ड कॉलिंग द फंक्शन. इसी में वी हैव रिकर्जन, जो कि आफ्टर विल बी डिस्कसिंग इन डेटा स्ट्रक्चर्स. वो एक फंक्शन को बार बार कॉल करके हम आउटपुट उसमें निकलवाते हैं. नेक्स्ट इज मॉड्यूलराइजेशन. बेसिकली बहुत बड़े कोड को फंक्शंस में डिवाइड करना, छोटे छोटे रीयूजेबल कोड्स में, दैट्स कॉल्ड मॉड्यूलराइजेशन. फंक्शंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉड्यूलराइजेशन. आपने एक प्रोग्राम को अपने छोटे छोटे फंक्शंस में बना दिया, देन दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलराइजेशन. कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन. एक अच्छे प्रोग्राम की निशानी ये होती है कि एक इंसान जो प्रोग्रामर नहीं है वो उस कोड को देखकर बता सके कि वो कोड क्या कर रहा है. So that's why we need comments and documentation. जैसे जो हमने पहला प्रोग्राम अपने प्रिंट कराया था for this, यहाँ पर आप देख सकते हैं we have this slash, double slash, और ये जो ग्रीन कलर का कोड है that is a comment. ये हमें बता रहा है कि that printf displays the string inside quotation, which we use here, right? Printf hello world. तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान जो प्रोग्राम नहीं वो देखेगा तो वो समझ जाएगा कि जो printf है it's displaying the string, the text, उसको आप टेक्स्ट कर दो, which is more easily understandable inside the quotation. जो quotation के अंदर का टेक्स्ट है printf is printing that. तो comments और documentation की इसीलिए ज़रूरत होती है ताकि we can define it understandably. Next let's talk about arrays. ये जो diagram में you can see it, it's a collection of elements. Okay, and homogeneous elements, एक तरीके के elements के collection को we call an array, and we have here A, B, C, D. तो वो एक array में हमने define कर दिया. This is basically to ease the storage of data, and उसके ऊपर हम अपना जो है operations अच्छे से कर सके. अगर हमें data को sort कराना है, and ज़्यादातर sort होता है storage, how we want it to be stored, किस तरीके से, तो we use arrays for that. उसको अगर हम ज़्यादा अच्छे से हमें अच्छा एल्गोरिथम लिखना है, वी हैव डेटा स्ट्रक्चर जिसमें वो सॉर्टिंग के अलग अलग एल्गोरिथम्स बताते हैं, एंड फॉर दैट वी हैव आफ्टर ही विल बी टेकिंग ओवर द सेशन लेटर. तो वो डेटा स्ट्रक्चर में आपको बताएगा कि कैसे एक अच्छा एल्गोरिथम लिखा जाए जहाँ आपका एरे विल बी सॉर्टेड इन लेस टाइम, लेस नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, एंड गिव यू द रिक्वायर्ड आउटपुट. तो एरे में बेसिकली दो तीन मेन चीज़ें हैं. दीज इंडिविजुअल बिट्स वी कॉल देम एलिमेंट्स.
जो एरे में स्टोर होते हैं, एंड ईच एरे बिगिंस विद दिस इंडेक्स, दे हैव इंडेक्स, जो एक वो एड्रेस उनका बता रहे हैं कि वो कहाँ पर स्टोर हुआ है। तो 0 इंडेक्स से शुरू होता है एन एरे एंड इट गोज टिल n-1। अगर हमारी एरे इज ऑफ लेंथ 4 एज यू कैन सी हियर, तो हमारा इंडेक्स विल गो टिल 3, दिस इज द लास्ट इंडेक्स। And this is definition, we have already covered it. Let's talk about examples. Sum of elements of array. As you can see it in the image, एक एक element को हम add कर रहे हैं. How it's getting added? For that, we're going to use the logic that we learned earlier. This is the code, and here you can see. Unfortunately, time off होता जा रहा है, so I just have to cover it from here. तो यहाँ पर अगर आप देखें, we have integer, we are introducing a variable array जिसमें हम अपनी array store करा रहे हैं। ओके, एक हमने वेरिएबल और ले लिया है सम व्हिच इज 0, और एक और हमने वेरिएबल लिया जहाँ पे वो साइज ऑफ एरे बताएगा, लेंथ ऑफ एरे बेसिकली कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर। देन वी आर लूप, वी आर यूजिंग अ लूप ताकि वो एक एक एलिमेंट पे इटरेट करके एज शोन इन द पिक्चर अर्लियर, फिर वो एक एक एलिमेंट पे जाएगा एंड इट विल पुट दैट नंबर इन द सम जो हमने 0 पे इनिशियलाइज करा है। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है बेसिक। यहाँ पे हम फॉर लूप कराने के बाद सम इक्वल्स टू सम प्लस अराई एक एक करके वो एलिमेंट्स को ऐड करते जाएगा जैसे वो पीछे इमेज में दिखाया था। ओके, एंड देन फाइनली इट विल प्रिंट ऑल ऑफ द सम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो जैसे पहले एक एग्जाम्पल दिया गया था, उन्होंने कहा था कि ईज रियल लाइफ एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझ सकें, यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट्स अ बुकिश डेफिनेशन, ये रीयूजेबल सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ओके, इसको बताओ। बेसिक हमारे 5-6 ये होते हैं इसमें कॉन्सेप्ट्स: ऑब्जेक्ट, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, और एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस। Let's talk about classes and objects. As an example here, you can see, you can easily understand. एक class जो है हमारा एक framework है, blueprint है, जिसमें हम multiple objects को fit कर सकते हैं। जैसे एक कार है, कार में भी all know 4 पहिए होते हैं, एक steering wheel होता है, एक passenger seat होती है, पीछे जो भी है capacity, that is a class of framework. And ये जो हम देख रहे हैं Audi, Nissan, Volvo and all other such models, this brand of car, these are real life objects which can fit into the class, that is the car. अब इसके concepts we have already discussed, this class, object, encapsulation. So it's easier to understand with this image. Basically हम एक class create करते हैं and उसमें हम एक variables, attributes add कर देते हैं कि एक कार है, उसमें कितने वो होंगी chairs, कितना capacity है उसकी, और methods basically कार चल रही है, कार का engine is working, these are methods, and encapsulation basically putting all these together inside a class. Polymorphism is the ability of a method to do different things based on the object it's acting upon. Best way to understand is through an example. ये एक आदमी है, वो एक काम भी करता है, यहाँ पे जॉब कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, शॉपिंग पे जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन वो किस तरीके का काम कर रहा है, दे कैन चेंज देयर फंक्शनैलिटी। सो दैट्स व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म इज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस। बेसिकली जो पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, दे हैव सर्टेन पेरेंटल प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी होती है कि आंखें सेम है, बाल सेम है, सो दैट वाज इनहेरिटेंस। एक क्लास से बच्चा जो है इनहेरिट कर रहा है certain attributes, certain properties. Abstraction की अगर हम एक बात करें तो if you can see in the image, एक वो complex structure है inside this phone, तो उसको basically abstraction में ये होता है कि जो सिर्फ useful चीज़ें हैं हम उसी को access करेंगे, बाकी अंदर internal काम कैसे हो रहा है we don't need to worry about it. So real life analogy with computer, building a car. Encapsulation में components in engine are enclosed in the car body. Inheritance class में कौन सी cars आ गई. Polymorphism is different types of cars and how they are behaving differently from each other. हर कार एक जैसी mileage नहीं लेती है, so that's what polymorphism is. Abstraction is कि
how the interface, the steering wheel, pedals, and how they are working, interacting internally. तो वो हमें नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है कार पे. हम सिर्फ अपना फंक्शनल कर रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया, पेडल एक्सीलरेटर दबाया तो कार तेज भागेगी. We don't know how internal function is working. So that's basically abstraction. Okay, thank you. Now I'd like to call Aftab to cover data structures, and we'll be explaining you further about everything. So please welcome Aftab. Thank you everyone. Thank you, Laiba. Now we'll look at this second session, which will be on data structures and algorithms. In this session, we will dive deep into the world of data structures and algorithms, the bedrock of computer science and programming. These are the tools that empower us to tackle complex problems, create efficient software, and make a real impact in the tech world. Data structures and algorithms are fundamental concepts with numerous practical advantages, ranking from career growth to problem-solving abilities and efficient coding practices. These skills are invaluable for anyone in the field of computer science and programming. Now, I would like to invite Aftab Ansari to join us on this stage. So good afternoon everyone, and जो लोग सो रहे हैं उनके लिए good morning. My name is Aftab. So let's start. एक तो टाइम की हमारे पास थोड़ी कमी है, तो फटाफट समअप करते हैं. डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम. जैसे फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं. आवाज आ रही है मेरी सब? So these are the fundamental types of data: integer, character, boolean, and float. So let's say कि किसी स्टूडेंट का मुझे रोल नंबर एंटर करना है, मतलब सेव करना है. तो इंटीजर रोल नंबर इज इक्वल टू 101 101 इस तरह कर देते हैं. और अगर किसी का साथ उसके साथ के नाम भी हमें स्टोर करना है, तो उसके लिए कैरेक्टर नेम इज इक्वल टू रविंदर इस तरह से कर देते हैं. पर अगर लेट्स से कि मुझे आप सभी का जो है रोल नंबर और जो नाम है वो स्टोर करना है, वो कैसे करेंगे? तो तरीका ये है कि 50 बच्चे हैं तो 50 वेरिएबल ले लिए, इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप. पर ये कन्वीनियंट वे नहीं है, क्योंकि ऐसे तो भूल जाएंगे कि 50 के वेरिएबल नेम याद रखने में दिक्कत होगी. उसके लिए क्या करते हैं हम, एक स्ट्रक्चर टाइप का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना लेते हैं. इसमें क्या होता है, आप अपने हिसाब से जो है डेटा जो डेटा आपको चाहिए वो स्टोर करा सकते हैं. तो फटाफट कोड पे आ जाते हैं. ये रहा. So this is a structure, user defined data type, integer roll number, character name, और इसको असाइन इस तरह करते हैं वैल्यूज. स्ट्रक्चर स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू, लेट्स से कि इनका रोल नंबर है 101 एंड नेम इज पुनीत. ठीक है, कोड को रन करा के देख लेते हैं एक बार. So the roll number is Puneet, or roll number is 101 and name is Puneet. तो अब इसका जो एप्लीकेशन है वो आगे देखेंगे फर्दर इन दिस सेशन. तो बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की. डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर आर द प्रोग्रामेटिक वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा. जैसे कि मैंने कहा कि 50 बच्चों का जो है डेटा एंटर कराना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? एरे में स्टोर कराते हैं, लिंक लिस्ट होती है, स्टैक्स होते हैं, क्यूज होते हैं. वो सब हम आगे बढ़े. अब जान लेते हैं कि एल्गोरिथम क्या होती है. एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर व्हिच डिफाइंस ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन ए सर्टेन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट. अब एल्गोरिथम जो चीज़ है वो ये कोई बिल्कुल नई चीज़ नहीं है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप पढ़ रहे हैं तो इसी में एल्गोरिथम है.
एल्गोरिदम ना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मैथ का एक क्वेश्चन है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि क्या करना चाहिए सिंप्लीफाई करने के लिए? हाँ, रेशनलाइज। तो ये क्या आपने एक प्रॉब्लम देखी, उसका एक सॉल्यूशन है कि सर क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रेशनलाइज किया, अंडर रूट गायब और ये आंसर सिंप्लीफाई हो गया। और कोई ऐसा एग्जाम्पल एल्गोरिथम का जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? एनीवन? क्या? हाँ, बिल्कुल 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 हो सकता है। और एक वो जानते हैं आप, एचसीएफ निकालना, सेकंड थर्ड क्लास से जानते ही होंगे। ये भी एक एल्गोरिथम है और इसका नाम भी है बाकायदा, दिस इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या होता है, दो नंबर होते हैं, स्मॉल एक ग्रेटर होता है, तो ग्रेटर नंबर जो होता है स्मॉल से डिवाइड करते हैं, फिर रिमाइंडर आता है, फिर ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट? एक तो जैसे मैंने बताया कि प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन प्रॉब्लम। जैसे कोई भी एग्जांपल हो सकता है कि मुझे मैट्रिक्स में कुछ मैनिपुलेशन करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैट्रिक्स स्टोर करनी पड़ेगी। अब मैट्रिक्स ये तो है नहीं कि एरे में स्टोर कर दें, तो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कि 2D एरेज होती हैं, 3D एरेज होती हैं। और दूसरा है कि दे ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग एग्जीक्यूशन टाइम एंड मेमोरी यूसेज। एक तो दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा कमी रहती है, एक तो टाइम की, जैसे फिलहाल भी है, तो उसके लिए फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, और मेमोरी यूसेज क्योंकि अनलिमिटेड मेमोरी हमारे पास भी नहीं है, ठीक है। तो फटाफट अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो लीनियर का ऐसा नहीं है कि केवल वन डायमेंशनल ही होता है, एरेज होती है, टू डायमेंशनल होती है। और भी जो है आगे फटाफट आ जाते हैं। एरेज, एरेज क्या होती है? तो एरेज जैसा लाइबा ने बताया कि एरेज है टाइप ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्या होता है कि जो सिमिलर टाइप का हमारे पास डेटा होता है, बहुत सारा डेटा है सिमिलर टाइप्स का है, तो उसे स्टोर कराना है तो एक एरे में स्टोर करा देंगे। दे एग्जिस्ट इन बोथ सिंगल एंड मल्टीपल डायमेंशन। जैसे मैट्रिक्स स्टोर करानी है तो उसके लिए एरे ऑफ एरेज बन जाती है, वो भी एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो लेट्स एरे की देख लेते हैं कि मेमोरी में कैसे स्टोर होती है। एरे जो होती है इंडेक्स 0 से शुरू होता है और जो अप टू n-1 तक जाता है, वो इसलिए क्योंकि 0 पहले एज ए 1 काउंट हो गया। तो जो ये है हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं और इनका सबका एड्रेस रहता है सिक्वेंशियल रहता है एकदम, जैसे 2391, उसके बाद नेक्स्ट जो बाइट होगी 2392, फिर 2393, 2395। तो दिस इज ए एरे, कैरेक्टर एरे ABCDE। कमेंट आउट करते हैं। तो इस तरह से 1 बाय 1 आइटरेट करके बाय इंडेक्स नंबर ये हमारी एरे प्रिंट हो गई है। अब देखते हैं कि एरे का जो एड्रेस होता है और एलिमेंट का एड्रेस होता है, ये कंप्यूटर में कैसे काम करता है। जो एरे होती है, एरे का जो वेरिएबल नेम है ना AR, इसके पास जो लोकेशन है मेमोरी की जो असाइन हुए, उसका जो स्टार्टिंग जो फर्स्ट बाइट जो होती है उसका एड्रेस रहता है, और वही जो एड्रेस रहता है वो फर्स्ट एलिमेंट का भी होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज, ये क्या है, ये एरे का एड्रेस है, जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो बताएगा, और जो ये है $AR, मतलब ये एलिमेंट है और ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस बताएगा। दोनों सेम आए, जो एरे का एड्रेस है वो सेम है फर्स्ट एलिमेंट के साथ। अब जो हमें सपोज कीजिए कि सेकंड जो एलिमेंट है हमारा, उसका एड्रेस क्या होगा। कैरेक्टर जो होता है वो 1 बाइट का होता है, तो उसका एड्रेस क्या होगा, 1 बाइट ऐड कर देंगे। जो सेकंड का एड्रेस होगा उसमें एक और बाइट ऐड कर देंगे। तो कैरेक्टर तो जो है वो एक बाइट का होता है, जैसे इंटीजर होता है वो 4 बाइट का होता है, तो उसमें जो फर्स्ट डेटा एलिमेंट होगा वो 4 बाइट जो जगह है वो लेगा। सेकंड एलिमेंट होगा जो एड्रेस प्लस 4, इस तरह से काम करता है। तो जो हम इंडेक्स I देते हैं, ये बेसिकली क्या करता है, जो एरे का एड्रेस है इनटू एरे का एड्रेस प्लस
साइज इंटू जो इंडेक्स होती है उसकी। तो जो थर्ड एलिमेंट है AR2, इंडेक्स नंबर 2 होगा इसका एड्रेस क्या आना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट। बोलो 84 नहीं, 84 का ही थर्ड जो एलिमेंट होगा उसका क्या आएगा, एड्रेस प्लस साइज होगा 1 इंटू 2, तो ये आएगा 86। ठीक है, अब जब एड्रेस की बात हो ही गई है तो पॉइंटर की बात कर लेते हैं। ये पॉइंटर कैन बी यूज्ड टू स्टोर ए मेमोरी एड्रेस। जैसे फटाफट देख लेते हैं प्रोग्राम में। कोई नॉर्मल डेटा हम स्टोर कराते हैं वो ऐसे कराते हैं इंटीजर एज इक्वल्स टू 10, और जब हम पॉइंटर स्टोर कराते हैं तो जो वेरिएबल नेम है उसके पीछे एस्ट्रिक लगा देते हैं। अब फिलहाल एज इक्वल्स टू 10 लिया है और जो पी पॉइंटर है उसमें डाला है एड्रेस ए का, तो ये क्या प्रिंट कराएगा, जो पी है वो 10 प्रिंट कराएगा। अब ये है P के पास है इसका एड्रेस। अब अगर हम P में कुछ चेंज करेंगे तो वो चेंज जो है वो A में भी शो होगा। जैसे एस्ट्रिक P इज इक्वल्स टू 15। अब P तो शो कराएगा 15। अब देख लेते हैं कि A में क्या चेंज आया है। ये पहले हमने 10 असाइन किया था, लेकिन अब जो उसकी वैल्यू हो चुकी है 15। इसका काम आएगा आगे लिंक लिस्ट पढ़ेंगे। लिंक लिस्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो पॉइंटर्स के थ्रू होता है, क्योंकि एरे में एक कमी है कि एरे स्टैटिक होती है कि एक बार डिफाइन कर दी 10 मेंबर्स की डिफाइन कर दी तो आप उसे ना बढ़ा सकते। और दूसरा ये है कि अगर हमें 5 एलिमेंट इंसर्ट कराने हैं तो बाकी जो 5 की जो स्पेस है वो तो खाना बेकार हो गई ना। तो यहाँ पर जहाँ पर हमें स्पेस की दिक्कत होती है, क्योंकि लिंक लिस्ट का क्या होता है, डायनेमिक साइज होता है, ये एक्सपेंड भी कर सकती है, श्रिंक भी कर सकती है, और ना कोई प्री एलोकेशन होता है कि एरे की तरह के 10 बाइट की जो आपकी स्टोरेज है वो असाइन हो गई है। लिंक लिस्ट भी सिमिलर है एरे के साथ, एरे की तरह। इसमें क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, नोड्स कनेक्टिंग टुगेदर विया लिंक्स। एरे का अब एग्जांपल देख लेते हैं। ये होता है एरे। एरे में क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में प्रोग्राम पे आ जाते हैं, प्रोग्राम पे बैठो अंडरस्टैंडिंग होगी। स्ट्रक्चर इसमें क्या है, एक तो हमारा जो वैल्यू है, वैल्यू टाइप का डेटा मेंबर है। अगला है वो जो अपने जैसे खुद जैसे भाई को किसी को पॉइंट आउट करेगा कि नेक्स्ट इज दिस। यही तो होता है ना लिंक, कि ये इसे पॉइंट करेगा, वो उसे पॉइंट करेगा, ऐसे के तो कनेक्शन बनते हैं। तो हमने क्या किया है, 4 नोड लिए, एक हेड जो बेसिकली काम करेगा इसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए, और लिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और फर्स्ट में जो है यहाँ पे मेमोरी एलोकेट किए कितने साइज की, साइज जो भी इसका स्ट्रक्चर नोड का होगा, फर्स्ट वैल्यू असाइन किए। फिर फर्स्ट के नेक्स्ट में क्या होगा, किसे पॉइंट करेगा, क्योंकि और कोई है नहीं तो नल को पॉइंट करेगा। फिर हमने सेकंड क्रिएट किया है, सेकंड की वैल्यू है 2 है, और सेकंड किसे पॉइंट आउट करेगा, नल को करेगा। अब हमें फर्स्ट को लिंक करना है, सेकंड को लिंक करना है फर्स्ट में, तो फर्स्ट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसमें हम सेकंड का एड्रेस डाल देंगे। इसी तरह थर्ड में सिमिलरली करेंगे। अब कोड को एक बार कर रहा है। तो दिस इज वन का एड्रेस, सेकंड का एड्रेस, थर्ड और थर्ड का एड्रेस। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और थर्ड किसे पॉइंट करेगा, नल को। अब नेक्स्ट डेटा टाइप है स्टैक। स्टैक के तो एग्जांपल आपने देखे होंगे, शादी ब्याह में तो गए होंगे, कभी बुलाए कभी बिना बुलाए, है ना। बिना बुलाए तो खैर मैं भी गया हूँ। तो आपने
ये कुर्सियां देखी होंगी, आपको अगर बैठना होगा तो आपको एक कुर्सी लेनी है, एक चेयर लेनी है, तो क्या करेंगे, कहाँ से कुर्सी निकालेंगे, सबसे नीचे से, बीच से या सबसे ऊपर से? हाँ, उसके लिए ऊपर वाली उठानी पड़ेगी ना, उसके लिए ऊपर वाली उठानी पड़ेगी, बीच से एकदम तो निकाल सकते। और अगर चेयर रखनी होगी तो भी सबसे ऊपर रखेंगे, क्योंकि बीच में रखोगे या नीचे रखोगे तब भी सबसे ऊपर वाली उठानी पड़ेगी। तो जो स्टैक होती है इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, दिस इज सिमिलर टू रियल वर्ल्ड स्टैक, फॉलोज द लीफ फॉर स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले डिलीट होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, लिंक लिस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया है। और फिलहाल तो अगर ये एक्सप्लेन करने लगे तो ज़्यादा हो जाए, कुछ टाइम भी नहीं है। देख लेते हैं वर्क कैसे करता है। अच्छा, दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा? अब ठीक है, तो सबसे पहले फिलहाल तो डिस्प्ले करा के देख लेते हैं। स्टैक अंडरफ्लो, स्टैक इज एम्प्टी। अब सबसे पहले एक डेटा इंसर्ट कराएंगे 13, फिर एक बार और इंसर्ट कराएंगे कुछ भी नहीं, कोई भी नंबर 45, फिर एक बार और 78। अब डिस्प्ले करा के देख लेते हैं कि हमारी जो स्टैक है वो कैसी बन रही है। सबसे पहले क्या है 78, फिर 45, फिर 39, फिर नल। अगर हम कोई एलिमेंट डिलीट करेंगे तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? कौन सा? नल बता। लास्ट कौन सा? ये बताओ ना, नंबर लिखा हुआ है ना, तो बताओ कि 3, 4, 5, हिंदी में भी बता दो, 78, 83, 88। तो सबसे पहले हमारा डिलीट होगा 78 हमारा डिलीट हो गया। अब डिस्प्ले करा के देख लेते हैं कि क्या बची है, 45, 13 और नल। तो दिस इज 45, 13 एंड नल। अब बात करते हैं कि अगला विजुअल रिप्रेजेंटेशन, पर मैंने उसी समझा दिया है। जैसे 1 आएगा, 2 आएगा, 50, फिर 3 आउट हो गया। नेक्स्ट इज क्यू। क्यू का तो आपको पता ही होगा कि क्यू क्या होती है, कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। कभी एटीएम की लाइन में लगे होंगे? नहीं सर। और कभी लॉकडाउन में कुछ खरीदारी करने के लिए, और ये वो 13 से शुरू होगा। आ जाते हैं प्रोग्राम पे। अब जो है क्यू को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्यू में है क्या। फिलहाल जो है क्यू इज एम्प्टी। एक डेटा इंसर्ट कराते हैं, एंटर क्यू 23, फिर इंसर्ट कराते हैं 90, फिर एक और 37। अब डिस्प्ले करा के देख लेते हैं कि जो क्यू है वो क्या बनी है, 23, 90, 37। तो सबसे लास्ट में जो मैंने इंसर्ट कराया है वो है 37, और सबसे पहले जो इंसर्ट कराया था वो था 23। अब हम डिलीट करेंगे तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? 23। चेक कर लेते हैं 23 को, और 23 आउट हो गया। फिर अब की बार 90 आएगा, 90 आउट, ठीक है। अब नेक्स्ट इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एक ग्राफ होता है, एक बाइनरी ट्री होता है। ग्राफ स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स दैट हैव डेटा एंड आर कनेक्टेड टू अदर नोड्स। एवरी रिलेशनशिप इज एन एज। ये तो प्रोग्रामिंग वाली डेफिनेशन होगी, ये आपके कोर्स में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। क्या फिलहाल ये देख लीजिए कि
इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ये नोट्स है, जैसे जो लिंक लिस्ट थी वो वन डायमेंशनल थी, एक एलिमेंट है वो दूसरे से कनेक्टेड है, वो तीसरे से स्विच होते थे। इसमें ऐसा ही, इसमें एक एलिमेंट कितने से भी कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट इज बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री इज ए डेटा स्ट्रक्चर इन व्हिच ईच पेरेंट नोड कैन हैव एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन। तो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, पर 2 से ज़्यादा नहीं। ये होता है बाइनरी ट्री, ठीक है। अब जो है बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम। एक सर्चिंग एल्गोरिदम होती है, क्योंकि अब हमने डेटा तो स्टोर करा लिया, अब दूसरा कुछ काम तो उस पर करना पड़ेगा ना। जैसे 50 बच्चों का डेटा स्टोर है, मुझे किसी की डिटेल्स निकालनी है तो सर्च करना पड़ेगा। सर्चिंग के लिए सर्चिंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे, फिर सॉर्टिंग एल्गोरिदम और रिकर्जन। उससे पहले बात कर लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम सबसे ज़्यादा जरूरी है ही। देखो जैसे मुझे घर जाना है 200 किलोमीटर, तो मैं पैदल भी जा सकता हूँ, कार से भी, बस से भी, ट्रेन से भी। पर क्या है ना कि अगर पैदल जाऊँगा तो इतना जाऊँगा तो छुट्टियाँ खत्म, और वापस आऊँगा तो सेमेस्टर खत्म। तो दिस इज नॉट द कन्वीनियंट वे। तो हम उसके लिए एल्गोरिदम इसलिए यूज करते हैं कि एल्गोरिदम जो एफिशिएंट होती है वो फास्ट होती है। एल्गोरिदम कितनी फास्ट है उसके लिए जो मीजर करते हैं वो इस तरह से करते हैं। तो बिग O 1 होता है, वो कॉन्स्टेंट के लिए होता है। मतलब प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट या 10 प्रिंट स्टेटमेंट है, तो उसके लिए क्या होगा, बिग O 1। अगर कोई लूप है, फॉर लूप, तो इंस्ट्रक्शन कितनी बार रन करेगा, जितनी बार n हम इनपुट कराएंगे, वो 5 भी हो सकती है, 50 भी, 500 भी, 1000 भी। और अगर नेस्टेड लूप होगा, मान लीजिए n = 10 है, तो नेस्टेड लूप होगा, लूप इनसाइड द लूप, वो कितनी बार रन करेगा, वो करेगा 100। उसी तरह स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर कांस्टेंट वेरिएबल इज 1। डायनेमिक एरे के किसी ऑपरेशन को करने के लिए हमें एक और एरे बनाने की जरूरत है कि एरे रिवर्स करनी है, तो क्या करेंगे, जो एरे है उसके लिए एक और एरे बनाएंगे, और जो लास्ट एलिमेंट है वो 1 by 1 नई एरे में इंसर्ट कराते जाएंगे। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O n। और सपोज कीजिए किसी ऑपरेशन के लिए मैट्रिक्स की जरूरत है, तो n by m की मैट्रिक्स बनाएंगे, तो उसके लिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O n/m। अब देखते हैं सर्चिंग एल्गोरिदम। लीनियर सर्च होता है, बाइनरी सर्च होता है, ठीक है। लीनियर सर्च का रिप्रेजेंटेशन ये है, 1 by 1 शुरू से या एंड से आइटरेट करता है जब तक उसे वो आइटम नहीं मिल जाता, ठीक है। इसका प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं एक बार। ये एरे लिए 20 तक एलिमेंट्स है, इसमें साइज इसका 20 है, और जो की है वो हमारा टारगेट एलिमेंट है जिसे हमें सर्च करना है, और ये है इंडेक्स वेरिएबल जो उसकी इंडेक्स रिटर्न करेगा। पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। ये लूप है, ठीक है। ये काउंटर है कि कितनी बार हमारा लूप रन हुआ है। ये काउंटर किस लिए यूज किया है मैंने, वो बाइनरी सर्च के बाद बताऊंगा। तो जहां ये हमारा टारगेट एलिमेंट से मैच हो जाएगा, एरे का एलिमेंट, वही ब्रेक हो जाएगा, और अगर ये फाउंड हुआ तो इंडेक्स रिटर्न कर देगा, और नहीं हुआ तो की एलिमेंट नॉट फाउंड। अब फटाफट आ जाते हैं प्रोग्राम पे। वन से 20 तक है, कोई नंबर सर्च करके देख लेते हैं। 10 इज फाउंड इन इंडेक्स 9 इसलिए क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होती है, और जो हमारी एरे है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। अब कोई ऐसा एलिमेंट देखते हैं जो आउट ऑफ इंडेक्स हो। जैसे इसमें 31 नहीं है, तो 31 की एलिमेंट नॉट फाउंड। कितने लूप चलाए, हमारा पूरे के पूरे 20 लूप चलाए, मतलब हर एक एलिमेंट को कंपेयर किया है, फिर जब नहीं मिला तो उसने रिटर्न करा दिया कि एलिमेंट नॉट फाउंड। अब देखते हैं कि बाइनरी सर्च क्या होता है। बाइनरी सर्च ये बिल्कुल ऐसे जैसे बुक्स में पेज सर्च करते हैं ना, कि 400 पेज की बुक है, हमें जाना है कि 250 पेज नंबर पे जाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले बुक को खोलेंगे एकदम बीच से। तो जैसे अगर मान लीजिए पेज खुला है हमारा 150 पे, तो 250 उससे आगे, तो सबसे शुरू में सर्च करने की जरूरत नहीं, वो तो बेकार हो गए। अब आगे सर्च करेंगे 150 के आगे, 150 के आगे फिर बीच से खोलेंगे, फिर मान लिया आ गया 200,
अभी भी उससे बड़ा है, तो फिर बीच से खोलेंगे जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है, तो 250 तब तक खोलते रहेंगे जब तक 250 नहीं आ जाता। तो जो सिक्वेंशियल सर्च है वो 1 by 1 इस तरह वर्क करता है, और जो बाइनरी सर्च है वो इस तरह वर्क करता है। तो पहले मिड देखेगा, अगर ग्रेटर हुआ तो फिर आगे वाले देखेगा, फिर आगे वाले देखेगा, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं प्रोग्राम। बाइनरी सर्च एक एरे लिए अगेन 1 to 20। अब इसके लूप काउंट सर्च करना, हमने पहले क्या किया था, हमने 10 सर्च किया था, फिर से देखते हैं 10 सर्च करके कि कितने लूप में काउंट होगा। x is equal to 10। एलिमेंट फाउंड इज इंडेक्स 9 और लूप काउंट 0 इसलिए क्योंकि पहले काउंट में ये एकदम मिडिल में है ना, तो पहली बार में ही वहां पे पहुंच गया। आप एक और जैसे 14 देखते हैं, लूप काउंट 4। अब फिर से 31 करके देखते हैं, पिछली बार कितना था लीनियर सर्च में, पिछली बार था 20। इस बार देखते हैं बाइनरी सर्च में कितना है, लूप काउंट ओनली 5 टाइम जो है वो लूप रन हुआ है, ठीक है। पर बाइनरी सर्च की एक जगह लैग कर जाता है, वो किस जगह, अगर डेटा हमारा अनऑर्डर्ड हो, क्योंकि फिर नहीं कर सकते, फिर हमको लीनियर सर्च ही लगाना पड़ेगा। और अगर ऐसा है कि हमें बार बार कोई चीज़ सर्च करनी पड़ रही है, तो उसके लिए हर बार लीनियर सर्च लगाने से बेहतर है कि एक बार पहले सॉर्ट कर लें, फिर उसके बाद बाइनरी सर्च लगाते जाएं, ठीक है। तो देखते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम। बबल सॉर्ट होती है, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और भी होती है। बस फिलहाल बबल सॉर्ट की बात कर लेते हैं। बबल सॉर्ट सिमिलर उसी तरह से वर्क करती है जैसे बबल आता है ना, बबल पानी में जो है वो अपने आप ऊपर आता जाता है, उसी तरह से ये वर्क करती है। फिर जो सबसे बिगेस्ट एलिमेंट होगा वो सबसे एंड में आता जाएगा, फिर उससे छोटा होगा वो एंड में, इसी तरह से फिर सॉर्ट होते जाएंगे। एक विजुअलाइजेशन देख लेते हैं। सबसे बिगर एलिमेंट सबसे एंड में आ गया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देख रहे हैं एंड से जो है वो हमारी जो एरे है वो सॉर्ट होती जा रही है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा भूल गया, खैर। तो वैसे भी विजुअलाइजेशन मैंने दिखाई दिया है, कैसे स्वैप करते रहते हैं। छोटा एलिमेंट हुआ तो पहले रहेगा, मतलब स्वैपिंग नहीं होगी। अगर बिगर एलिमेंट होगा तो वो स्मॉलर के बाद आ जाएगा। नेक्स्ट इज रिकर्जन। रिकर्जन इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ए फंक्शन इटसेल्फ रिपीटेडली अंटिल ए पर्टिकुलर कंडीशन इज मेट। रिकर्जन जैसे फैक्टोरियल निकालते हैं, 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करेंगे, 5 इंटू उससे जो स्मॉलर है 4, फिर इंटू उससे जो स्मॉलर है 3, अप टू कहाँ तक चलेगा, अप टू 1 तक चलेगा। इसमें क्या होता है कि फंक्शन अपने आप को कॉल करता है जब तक कि कंडीशन मैच नहीं हो जाती। उसके बाद क्या करता है, जैसे रिटर्न 5 है, 5 के बाद इसने किसे कॉल किया है, फैक्टोरियल 4 को। 4 के बाद किसे कॉल किया है, 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को। उसके बाद 1 के बाद जब 0 को कॉल किया गया, 0 ने वैल्यू दे दी 1, फिर जो 1 आई है वो इसमें आई, फिर इसकी मल्टीप्लाई के साथ हो गई है 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ हो गई, फिर 6, फिर 6 की मल्टीप्लाई 4 के साथ हो गई 24, तो फिर फाइनली 120। एक तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो ठीक है, ठीक है। So I would like to invite Subri Bhai to conclude this session. So thank you for the patience everyone. I know time बहुत ज़्यादा हो गया,
तो आज के जो क्वेश्चन थे वो ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे। ऑल्सो अगर कहीं स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन करना होगा, जैसे कि हमने कल स्क्रैच पढ़ा था, तो कल के जो भी क्वेश्चन थे वो स्क्रैच में बनेंगे। आज जैसे आपने एल्गोरिथम्स पढ़ा या डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, तो ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। हमने एग्जाम्पल भले सी कर लिया, लेकिन अगर आप पाइथन, जावा या C++ और भी किसी लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो आपको कर सकते हैं। क्वेश्चन से विल व्हाट्सएप यू द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली देयर विल बी इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू इट। आज का आपको जिस भी लैंग्वेज में करना होगा आप उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। कल के जो टास्क थे वो स्क्रैच नहीं होंगे। एंड फ्रॉम दिस सेशन ऑनवर्ड टुमारो आई विल बी लर्निंग एंड्रॉइड स्टूडियो, तो प्लीज इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो, दैट इज टेक सम टाइम टू डू सो। एंड कल के जो भी टास्क होगा वो एंड्रॉइड स्टूडियो में होगा। तो yeah, do install the exe package. Rest time will assist you in the installation process. So thank you for the patience, and we will share the classroom link and also the question from the WhatsApp group. Thank you everyone.